السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ معاف کر دو لیکن بھول مت جاؤ ورنہ پہلے سے بھی بڑی چوٹ ملے گی۔ سورہ بقرہ کی برکت اور طاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ نماز میں ناگا نہیں۔ بہت گہری بات بول دی بابا جی نے، بس حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ تو چلے کہ آیا ہے، چاہے سبق یاد رہے یا نہیں مگر کلاس میں حاضر ہے۔ یہ ہیں وہ رائی کے دانے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس بری عادت سے بچائے، آمین۔ اپنا جائزہ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہ کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جو قرآن سے جڑ گئے وہ فلاح پا گیا۔ احساس کم تری کی علامت۔ نمبر 1، ہر چھوٹی بات پر معافی مانگنا۔ نمبر 2، اپنی کامیابی کو بہت چھوٹا سمجھنا۔ نمبر 3، لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ نہ ہونا۔ نمبر 6، ہمیشہ جذباتی رویہ اختیار کرنا۔ نمبر 7، رو کر لوگوں سے ہمدردی وصول کرنا۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جب 5 وقت کی نماز بھی رب سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ قبولیت کی نشانی۔ تہجد کی دعا مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ ہر رات میں قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان دین و دنیا کی بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اختیار کرو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں وہ ہمیشہ فقیر رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہوا تو ایک وقت آتا ہے کہ جب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھے رہو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فرصتیں میں یہ آزمائشیں یا تکلیفیں بلا وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں، صبر کے
कड़वे घूंट के बदले तुम्हें शुक्र के सजदे तक लाने का वादा है। जिस घर में हर मील होता है इससे शैतान 70 घर दूर भागता है। हर मील 70 बीमारियों की दवा है। ज़िंदगी अल्लाह के साथ ही खूबसूरत है। सुकून बेकार चीज़ों में तलाश करने की बजाय अपने रब की मोहब्बत में तलाश करो। अल्लाह के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। दिखावे की कोशिश भी ना करो, जब कमाल को पहुँचोगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वह वक्त हो या इंसान हो या कोई रिश्ता। वह शख्स अपने आप पर बड़ा जुल्म करता है जो पूरे दिन में रात में एक बार भी इस्तग़फ़ार नहीं करता। वक्त कितना भी बुरा हो गुजर ही जाता है, लेकिन रवैये, लहजे और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इखलाक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट देता है। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, यह एक झूठ है। ज़िंदगी हमें रोज़ाना मिलती है, मौत हमें सिर्फ एक बार मिलती है। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है। रिस्क और इज़्ज़त किसी के अपने इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे देता है। ज़िंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। हर बात में हाँ मिलाना मुनाफिकों की आदत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। उन लोगों का रिश्ता बहुत ख़ास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मुताज न हो। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहे। हद में रहना और हद में रखना ज़िंदगी का बेहतरीन उसूल है। सजदे में नहीं जाओगे तो टेंशन में ही जाओगे ना। एक ही सांप से बार बार डसना सरासर बेवकूफ़ी है, लिहाजा एहतियात कीजिए। किसी जिंदा इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरना उसकी कब्र पर उम्र भर गुलदस्ते रखने से 1000 दर्जे बेहतर है। अपने वालिदैन, बीवी, बच्चों, बहन, भाइयों और सब करीबी रिश्तों को इज्जत दें, उनका ख्याल रखें, एहतराम करें, क्योंकि ये रिश्ते फिर नहीं मिलते। ज़िंदगी के सपने अपलोड तो फ़ौरन हो जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। अगर आपने लोगों की ज़्यादती को सब्र और शुक्र से झेला है तो बेफिक्र हो जाए, परवरदिगार उसको बहुत महंगे दामों में खरीद लेगा। और जब आखिरत में नामा अमाल खोले जाएंगे तब हम जान जाएंगे कि सिर्फ वही लम्हे कीमती थे जो अल्लाह की याद में गुजरे। दुनिया की सबसे खूबसूरत से नींद है जो इंसान को कुछ वक्त के लिए हर गम से आज़ाद कर देती है। हमें तौक़ात के बोझ ने बहुत थकाया है, पर फिर भी हमने हर बार दुनिया बोझ उठाने की नियत करते हैं। नमाज में सब अमल हो जाते हैं, तिलावत भी, ज़िक्र भी, दरूद भी, दुआ भी, आजिज़ी भी, वर्जिश भी। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक्ल जितनी छोटी होगी ज़ुबान उतनी लंबी हो जाएगी। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर क्यों ना हो। नमाज में सजदा सऊद के ज़रिए तालीम दी गई है कि जब गलती हो जाए तो उसे तस्लीम कर लो और झुक जाओ। या अल्लाह, जो हाथ तेरे आगे फैलते हैं उन्हें अपने बंदों के आगे फैलाने से बचा। कोई आलिम हो तो एक बात पूछनी थी, गम पी जाने से रोज़ा टूट जाता है क्या? जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो देख लीजिए कि खराबी कहीं आप ही के अंदर तो नहीं। लोगों के लिए सब कुछ करके देखो, मगर जब उनका काम आपसे पूरा हो जाए तो आपको ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी जानते ही नहीं थे। जो इंसान पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज़ के लिए जो मुझसे ली गई या मुझे बिन मांगे दी गई। सिकवा तो बनता ही नहीं इस पाक ज़ात से जो बेहतर का बदला बेहतरीन देता है। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और रिस्क में खैर व बरकत अता करे। आमीन। आपका किरदार जितना भी साफ वो लोग वही सोचेंगे जो उनके घर में होता है। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। किसी गरीब को तंग मत करना, तेरी ताकत पैसा है, उसकी ताकत अल्लाह है। दिल बड़ा होना चाहिए, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। इंसान के लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराग होते हैं जो उसको भरने नहीं देते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, यह न सोचो कि तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं करता,
बल्कि ये शुक्र करो कि तुम्हारी गुनाहों की सज़ा वो फ़ौरन नहीं देता। मुझे मालूम नहीं कि कल मेरे हक़ में क्या फ़ैसला है, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है, वह मुझे जो अता करेगा वह मेरे हक़ में बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बना लें। रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। जब आप अल्लाह से मशवरा मांगते हैं तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हुई। मुश्किल बड़ी छोटी है, मुश्किल से निकालने वाला बहुत बड़ा है। उम्र की ऊंचाइयां चढ़ता हुआ इंसान यह भूल जाता है कि असल में उतर रहा है जीना जीना 2 गज ज़मीन में। दिलों को साफ रखना सीखो। दिलों के बुग़्ज़ हर रिश्ते को खा जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी नेकियां भी और आपकी ज़िंदगी भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। इंसान के 3 हिस्से हैं, इनमें से एक हिस्सा अल्लाह का, एक अपना, एक हिस्सा कपड़ों का। जो हिस्सा अल्लाह का है वह रूह है, जो हिस्सा अपना है वह अमल है, जो कपड़ों का है वह जिस्म है। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज़्ज़त महफूज हो, उस अमीरी से बेहतर है जिसमें ज़िल्लत व रुसवाई हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। खुशी देना एक सदका है, दुख देना एक कर्ज है जो एक न एक दिन ज़रूर वापस मिलता है। अपनी ज़िंदगी अपने रब के हवाले कर दे, फिर वह ज़ात आपकी ज़िंदगी को इस तरह बदल देगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। मोहब्बत इज़्ज़त होती है, खैरात नहीं। नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ़ हो गए। ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। चेहरे खूबसूरत हो या ना हो, पर अल्फाज हमेशा खूबसूरत रखिएगा, क्योंकि लोग चेहरे तो भूल जाते हैं पर अल्फाज हमेशा याद रखते हैं। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। खुशियाँ पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती हैं, और दर्द सिर्फ अपने होते हैं जो दिल में रखने पड़ते हैं। शादी उस मर्द से करनी चाहिए जिसकी बात उसके घर वाले सुनते हों और अमल भी करते हों, जिसकी वालिदैन से दोस्ती हो, ना कि ऐसा मर्द जो अपने घर वालों से डरता हो फिर भुगतना बीवी को पड़ता है। ऐसा मर्द बीवी के हुकूक अदा करने से भी डरता है।